السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب آج میں حاضر ہوں اسیر عشق کے ایپیسوڈ کے ساتھ، جس کا آپ لوگوں کو بہت زیادہ انتظار تھا، جنہوں نے بہت انتظار کیا۔ کامنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے ڈیمانڈ کی اسیر عشق کی، اس کے لیے بہت زیادہ تھینک یو میری ناول کو اتنا ڈیمانڈنگ بنانے کے لیے۔ بس آپ لوگ اسی طرح مجھے اپنا پیار دیتے رہیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو جلدی جلدی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی ناول کی طرف۔ آلیان جب کال کر ہی لی ہے تو منہ بنانے کے بجائے ٹھیک سے بات کر لو۔ رانی، تم نے تو نہ حال پوچھا اور نہ ہی کال کی۔ ارے تم جانتے ہو نا، میرا کالج اسٹارٹ ہو گیا ہے، پھر میوزک اسکول بھی جانا ہوتا ہے، مجھے ٹائم ہی کہاں ملتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ویڈیو کال پر آؤ۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے؟ رانی، تمہیں میری محبت ڈرامہ کیوں لگتی ہے؟ آلیان پلیز، یہ ہر وقت ڈپیکلٹ منگیتر بننے کی کوشش مت کیا کرو۔ ہم دوست ہیں یار، سو پلیز دوستوں کی طرح باتیں کیا کرو۔ رانی، لیکن تم اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی کہ ہماری نسبت طے ہے، جب دیکھی جائے گی۔ اچھا ویڈیو کال پر تو آؤ، بہت دنوں سے تمہیں دیکھا نہیں ہے، دل چاہ رہا ہے۔ آلیان، رانی پلیز، بس تھوڑی دیر کے لیے۔ او ایم جی، اوکے دیٹس فائن، اوپن یور فونز کیمرا۔ ٹھیک ہے، اپنے فون کا کیمرہ آن کرو۔ تھینک یو۔ رانی، تم نے میری بات مان لی، اب بولو کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، بس تمہیں دیکھنا تھا۔ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ آلیان، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، یہ کہہ کر رانی نے جلدی سے ایک کال کاٹ دی۔ میں نے پوچھا کس سے باتیں کر رہی ہو، کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ آلیان سے، رانی نے ہولے سے کہا۔ کون ہے یہ آلیان؟ میں میرا منگیتر۔ منگیتر مطلب وہ تمہارا ہونے والا؟ زہران کہتے کہتے رکا، کیونکہ اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ زہران، اس سے میرا رشتہ اس وقت لگا تھا جب میں لاہور میں تھی، رانی نے صفائی دینے کے انداز سے کہا۔ رانی، تم مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ رانی خاموش تھی۔ رانی بولو، جواب دو مجھے، تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ زہران نے رانی کے بازوؤں کو جکڑ کر جھنجھوڑا۔ تو تم جنزاد ہو؟ بالکل، میں جنزاد ہوں، اور جنزاد کی نفرت اور محبت دونوں ہی خطرناک ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانا بالکل نہیں آتا۔ زہران، یہ سب تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ میری جان، میں تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ تم میری محبت ہو۔ اگر تمہیں مجھ سے کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اس سے اس کی سانسیں چھین لوں گا۔ زہران، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ رانی، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ نہیں زہران، تم مجھ سے وعدہ کرو، تم کبھی کسی کی جان نہیں لوگے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم کبھی کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔ یہ وعدہ میں نہیں کر سکتا۔ رانی، تم مجھے سخت امتحان میں مت ڈالو۔ زہران، کیا میرے پیار کی خاطر تم ایک وعدہ نہیں کر سکتے؟ تمہارے پیار کی خاطر ہی تو مجھے یہ طویل جنگ لڑنی ہے۔ اگر میں نے یہ وعدہ کر لیا
तो मैं कभी शायद तुम्हें हासिल ना कर पाऊँ। ज़हरान, अपनी मोहब्बत पर भरोसा रखो, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। हम एक दिन ज़रूर एक होंगे। लेकिन ज़हरान, मैं एक खूनी और कातिल से कभी मोहब्बत नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें वादा करना होगा, तुम कभी किसी की जान नहीं लोगे। रानीम, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे मजबूर ना करो। ज़हरान, तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं कभी किसी की जान नहीं लूँगा। ज़हरान ने सर्द आह भर के कहा। आई लव यू ज़हरान। क्या? ये क्या कहा तुमने? मैंने कहा आई लव यू। और इसका क्या मतलब होता है? हाँ हाँ हाँ। ओह ज़हरान, तुम कितने मासूम हो। इसका मतलब है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अच्छा जी, तो ये कौन सी ज़बान है? ये इंग्लिश, मेरा मेरा मतलब है अंग्रेजी ज़बान है। अच्छा अच्छा, जब मैं छोटा था तो ये अंग्रेज यहीं रहते थे। वो बहुत बुरे थे, खुद इंसान होकर इंसानों पर जुल्म किया करते थे। मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता था कि भला कोई अपने जैसे मखलूक पर कैसे जुल्म कर सकता है। हाँ 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 ज़हरान, तुम वाकई बहुत मासूम हो। अच्छा रुको, मैं तुम्हें तफसील से समझाती हूँ। अब दोनों रानीम के कमरे के सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। चलो, अब मैं जो पूछूंगी उसका जवाब देना। ठीक है? ज़हरान ने असबाब में सर हिला दिया। तुम मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पूरा कबीला मुसलमान है। वेरी गुड। अब बताओ कि बहुत से जिन्नात ऐसे भी होंगे जो मुसलमान नहीं होंगे, है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हम जिन्नात की दुनिया में भी अलग अलग मजहब है। कोई हिंदू है, कोई यहूदी है, कोई क्रिश्चियन है, तो कोई शैतान का पुजारी है। बिल्कुल। अब जो अलग मजहब के जिन हैं, वो यकीनन अलग थलग रहते होंगे। हाँ, ऐसा ही है। जाहिर है उनका कबीला और मजहब अलग होता है। हम्म, अगर उनके कबीले के लोग आकर तुम्हारे कबीले पर हमला करें और कहें कि तुम भी हमारा हुक्म मानो, हमारे मजहब को अपना लो, तो क्या ये सही होगा या गलत? तानीम, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन तुम इंसान हो इसलिए इंसानों की तरह सोचती हो। जिनजात में ऐसा नहीं होता। कोई किसी पर मुसल्लत नहीं होता। सब अपने अपने कबीले और मजहब से चलते हैं। कोई किसी को परेशान नहीं करता। हाँ, शायद तुमने सही कहा। इस दुनिया में सबसे खतरनाक मखलूक इंसान ही होती है। बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है। बेशक इंसान सबसे अफजल है, लेकिन इंसान का ईमान बहुत कमजोर होता है, जब ही वो फौरन बहक जाता है। हम्म, छोड़ो, हम ये किस बहस में लग गए। चलो मुझे वहां लेकर चलो जहां मुझ पर फूलों की बरसात होती है। चलो फिर। जहरान ने रानीम की आंखों पर अपने हाथ रखे। 2 सेकंड के बाद हाथ हटाया तो रानीम फूलों की हसीन वादियों में थी। जहरान, मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। रानीम उस फूलों के मैदान में भागती दौड़ती हुई बोली। जगह जगह रंग बिरंगे फूल खिले थे, जहां वो दिलकश खुशबू से मौतर थी। वो जगह दिलकश खुशबू से मौतर थी। ज़हरान जिस भी कली को हाथ लगाता, वो खिलकर फूल बन जाती। ये तुमने कैसे किया? रानीम ने हैरत से पूछा। आओ, तुम्हें सिखाता हूँ। ज़हरान ने रानीम का हाथ थामकर उसकी और अपनी शहादत की उंगली को जोड़कर कली को छुआ।
تو कली फौरन फूल बन गई। हाँ, ये मैंने किया? वाओ! ये कितना अच्छा है। चलो तुम्हें एक और चीज़ दिखाऊँ। वो रानीम का हाथ थामकर आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलकर वो खूबसूरत झरने के पास आया, जहाँ का पानी इतना शफ़ाफ़ नज़र आ रहा था कि लगता था क्रिस्टल है। एक बड़े से पत्थर के करीब दोनों बैठकर झील के पानी को देख रहे थे, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा बड़े-बड़े कमल के फूल थे। ये मंज़र तलस्सुमाती था। रानीम ने इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी थी। यहाँ कितना सुकून था। वो वहाँ ना गर्मी थी, ना ही ठंडक, एक मतवाज़न फ़िज़ा थी। ज़हरान और रानीम दुनिया से बेनियाज़ एक दूसरे में खोए हुए थे। रानीम, कहो ज़हरान, तुम उस आलियान से दोबारा बात नहीं करना। ज़हरान, तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा है या नहीं? खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। तो बस ज़हरान, तुम मुझ पर ऐसे ही भरोसा रखो। मैं कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूँगी। वादा? हाँ, वादा। रानीम, ज़हरान, मम्मा की आवाज़ आ रही है। वो कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। आंखें बंद करो। रानीम ने आंखें बंद की तो ज़हरान उसे सेकंड में कमरे में ले आया। जी मम्मा, आ रही हूँ। ये कहकर रानीम ने कमरे का दरवाज़ा खोला। कहाँ थी बेटा? कब से दस्तक दे रही हूँ। मम्मा, मैं सो रही थी। अच्छा, खाना खा लो फिर सो जाना। मम्मा, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लें। लेकिन मुझे तो भूख लगी है। मुझे खाना कौन खिलाएगा? वहीं पास बैठा ज़हरान रानीम से मुखातिब हुआ। क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? भूख क्यों नहीं है? सफ़िया बेगम ने फिक्रमंदी से पूछा। मम्मा, मुझे भूख लगी तो मैं खा लूँगी। आप फ़िक्र न करें। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। ये कहकर सफ़िया बेगम चली गईं। ये क्या बोल रहे थे तुम मम्मा के सामने? उन्होंने कौन-सा सुन लिया? उन्होंने कौन-सा सुन लेना था, जो तुम ऐसे पूछ रही हो? फिर भी ज़हरान, तुम चुप नहीं रह सकते थे। अरे, तो मुझे भूख लगी है, तो क्या मैं नहीं बोलूँ? तुम्हें वाक़ई भूख लगी है या मुझसे शरारत कर रहे हो? अरे मेरी जाने अदा, आपके ज़हरान को सचमुच भूख लगी है। अच्छा, मम्मा पापा को सोने दो, फिर तुम्हें खाना खिलाती हूँ। चलो ठीक है, जब तक तुम कोई अच्छा-सा धुन का साज़ ही छेड़ दो। तुम्हें संगीत पसंद है? जब से तुम्हारी धुन सुनी है तब से पसंद है। रानीम अपने पियानो के पास बैठकर पियानो बजाने लगी। अब रानीम का कमरा ज़हरान की मनमोहक खुशबू से मुअत्तर होना शुरू हो गई थी। रानीम पियानो बहुत खूबसूरत धुन से बजाती थी। ज़हरान उसके धुन में इतना मगन हो जाता था कि वो खुशी से महकने लगता था। अक्सर ऐसा ही होता था। जब रानीम पियानो बजाती तो उसका कमरा मुअत्तर हो जाता। ज़हरान, शायद मम्मा-पापा सो चुके हैं। चलो, मैं तुम्हें खाना दूँ। हाँ, चलो, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। तुम यहाँ बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ। रानीम ने उसे डाइनिंग चेयर पर बिठाया। ये लो खाना खाओ। रानीम किचन से खाना निकाल कर ले आई। तुम भी खाओ। मुझे भूख नहीं है। जब मेरे हाथ से खाओगी तो भूख भी लग जाएगी। ज़हरान अपने हाथों से पहला निवाला रानीम के मुँह के करीब करते हुए बोला। दोनों ने मिलकर
आधी रात में डिनर किया। मेहरू, तुमने होमवर्क कर लिया? हाँ, कर लिया। क्यों? तुमने नहीं किया? नहीं ना यार, मुझे टाइम नहीं मिला। और असल बात ये है, मैं भूल गई थी। वाह वाह, क्या बात है मैडम की, भूल गई थी। अब तुम्हें वो जल्लाद किश्वर बताएगी। मेहरू, मुझे बहुत डर लग रहा है। मिस किश्वर तो मुझे वैसे ही बहुत गुस्से वाली लगती हैं। सिर्फ लगती नहीं है, वो है गुस्से वाली। और तो उन्होंने वो स्टूडेंट जो काम नहीं करते उनके लिए एक स्पेशल स्टिक बना रखी है जिस पर रेड टेप चढ़ाया हुआ है। उससे पिटाई करती हैं। क्या बक रही हो? स्टूडेंट को मारना कहाँ अलाउ है? ए लड़की, तुम इस खुशफहमी में मुब्तला ना रहना। उनका अपना रूल है और यहाँ किसी भी तुलबा की मजाल नहीं है कि कोई उनकी कंप्लेन कर सके। अब तो तुम भी तैयार रहो वो मोटी वाली स्टिक से मार खाने के लिए। यार, मुझ पर आज तक मेरे वालिदैन ने हाथ नहीं उठाया। चलो, तो अब ये शुभ काम मिस किश्वर ही करेंगी। मेहरू, तुम दोस्त हो या दुश्मन? क्यों डरा रही हो? ये ज़हरान ने मुझे किस काम में लगा दिया है? अब अबीर के अब अबीर के गर्ल्स कॉलेज में एक इंसानी लड़की की हिफाजत करने का काम सर अंजाम देगा। सोच सोच कर ही गुस्सा आ रहा है। चल अबीर, ढूंढ उस दोशीज़ा को जिसका नाम रानीम है। ज़हरान ने बताया था वो फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल की स्टूडेंट है। मैंने कल जो होमवर्क दिया था सबने कर लिया? यस मैम, क्लास की तमाम तुलबा ने मुश्तरका कहा। वेरी गुड। और जिन लड़कियों ने काम मुकम्मल नहीं किया है वो खुद ही शराफत से खड़ी हो जाए, क्योंकि अगर मैंने किसी को निकाला तो बहुत बुरा होगा। मिस किश्वर ने धमकाया तो रानी फौरन ही खड़ी हो गई। ओह, न्यू स्टूडेंट। और कौन है? सॉरी मैम, मैं कल वर्क कर लूंगी प्लीज मैम, रानी मिन्नतें करती हुई बोली। उसे मार खाने के नाम से ही बहुत डर लग रहा था। हाथ सामने निकालिए। मिस किश्वर अपनी स्पेशल स्टिक हाथ में लिए रानीम से मुखातिब हुई। रानीम ने हाथ सामने किए जो कांप रहे थे। खूबसूरत सिया आंखों में आंसू भरे हुए थे। ये है रानीम, ज़हरान ने जैसी बताया था, ये तो उससे कई ज्यादा हसीन है। मानना पड़ेगा ज़हरान, तुझे ऐसे ही इश्क नहीं हुआ इस दोशीज़ा से। ये तो वाकई इश्क करने के काबिल है। अबीर की क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ा रानीम को देख रहा था। मैम प्लीज मैम, रानीम रोती हुई बोली। अभी मिस किश्वर रानीम को मारने के लिए अपनी स्टिक उठाई थी कि किसी भारी शय ने स्टिक को थाम लिया। मिस किश्वर ने अपनी पूरी ताकत लगा ली, लेकिन स्टिक टस से मस न हुई। क्लास की तमाम लड़कियां, यहाँ तक यहाँ तक रानीम भी सोच रही थी कि मिस किश्वर क्या कर रही हैं। इसी ड्रामे में क्लास की बेल लग गई और मिस किश्वर गुस्से से चली गई। इतनी खूबसूरत दोशीज़ा को मारने के बारे में सोच कैसे सकती है? मोटी, तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगा, अबीर मिस किश्वर को देखकर बोला। आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ, तो आप लोगों को मेरी ये एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। आप लोगों का एक लाइक सॉरी आप लोगों का एक लाइक और एक कमेंट मेरे लिए एनर्जी ड्रिंक का काम करता है। तो प्लीज़ मुझे बताया करें।
اور ایک بات کرتی چلوں، میں اب کوشش کروں گی کہ اسیر عشق کی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو ریگولر دوں، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ مجھے موٹیویشن کی ضرورت ہوگی، جو آپ لوگ ہی دے سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔